Assalamu alaikum Nazreen. Welcome to our show. Do show? Mastane. 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 What is the exact translation of Mastani? Mastane is someone who is mastanoing, I like it. who is caught in the act of Musty? mastaning. In the act of mastanification? Mastanification. It's an adverb, an adjective, a verb, and a pronoun. Wow. All at the same All time. four things. Uh, I like it. I like it. And that's why we liked it so much, we called it Do Mastane, which means two Mastanas. Twice the mustification. It's a double Vehmi. Baby. Anyhow, welcome to With a yet V. another episode of Do Mastane, sponsored and supported as usual by the Synod the Dreams of the media. Sin of the dreams of Actually, the media. we shouldn't butcher their name. They're watching us right now, and they're paying for this But segment. Abdul, they're not just watching us; they're watching different worlds. They're watching aliens too. That's how They're watching Aliens. Speaking of aliens, Yeah. no, actually, not. We can't jump to aliens right That would now. have been an interesting segment. That would have been a very good segue, but I completely ruined that. No, that's fine. But actually, no. Actually, do you think? Like, I know we keep calling Donald Trump an alien, लेकिन मुझे तो लगता है उसके कुछ aliens cousins यहाँ भी रहते हैं in Canada. यार, इसके जो निशानी है उसने यहाँ ही छोड़ फिर यहाँ भी छोड़ दी. पहले तो हम बेचारे उसको अपने वो गोल मटोल क्या नाम है डकफोर्ड को समझ रहे थे. But ये अपना what's his name? First name? Poilievre. Poilievre. Pierre? Poilievre. Is it Pierre? पीपी हमको उसको पीपी पीपी है वो. Pierre Poilievre जितना पीपी भी बकता है वो. जितना बड़ा जिन वो है हाँ. कनाडा का, who has literally taken an axe and he has hit that on his foot. ये कहते हैं ना. हथौड़ा नहीं वो मतलब हथौड़ा तो हैमर होता है. हाँ नहीं वो कुल्हाड़ी को कहते हैं. कुल्हाड़ी को. कुल्हाड़ी जो axe है ना. Taken a कुल्हाड़ी. A big ass axe. Big ass axe. A mega axe. Axe. And he's hit both his feet He's hit other parts of his body too. and body. The only part he didn't hit and he should have is his mouth. Yeah, I thought क्योंकि you were gonna वो say something else. उसकी जबान जो है Change his sexuality altogether. वो भी उसकी जबान ट्रम्प से भी ज्यादा तेज चलने लगी है. Not only when he's speaking, but also when he's biting on an apple. ये लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ. यार मैं अभी डॉट्स कनेक्ट करूंगा अभी. आने आप समझ रहे होंगे. मैं समझ रहा हूँ. Apple, Poilievre, journalists, Trump. ट्रम्प. Connect चीजें जो हैं connect those four dots. ये कनेक्ट हो रही हैं ये. They are fitting in the tankas. Ah. So here's the two things. The interesting developments in Canadian politics is कि पिछले 2 हफ्ते पहले तक liberals were going to easily lose the They elections. were just getting ransacked. Ransacked हो रहे थे बुरी तरह. फिर हुआ ये कि मार्क कार्नी. बड़ा shrewd आदमी. Oh man, I know we talked about him last week, but he's so good that we need to re-talk. You know, and Abdullah, I don't think he holds the same liberal principles and feelings that most liberals are known for or identified for. No, I don't think he's a liberal at all. He's the most At heart, he's unliberal liberal. You're ever. right. And it's, you'd expect that from PP for not being liberal. Yeah. But what PP is just he caters to whatever the halat is. Yes. Lekin Carney jo hai, he's internally more right-winger than he is a left-wing liberal. Oh yes. मुझे नजर आ रहा है. I'm beginning to sense it. कार्नी वो है जैसे वो हॉकी में होता है ना 2-3 ढीले प्लेयर खेल रहे होते हैं and then all of a sudden Todd Bertuzzi shows up on ice Bertuzzi shows up. and starts shoving people and whacking their heads and almost killing them. Killing them, yeah. Remember that? Mark Carney is doing the exact same thing. Liberals have been known as almost like the pushovers Yeah. of Canadian politics. Well, at least for the last couple You know, of the nice guys के सब आ जाओ ना हम आपको ले लेंगे हम आपकी take everybody in. सेवा करेंगे We will take the Syrians in. We will take The all my Lebanese mistresses in. We will take everyone in. And my mistresses are actually misters. That's my whatever. mistresses will leave but my mistress will take them in or they'll take me in or whichever way it works. लेकिन भारत liberals का इसने नक्शे ही बदल दिया. He's become a bigger conservative than the conservatives. That's the point. That's the point. And I think the liberals, timing कह लीजिए आप, karma कह लीजिए या नहीं, coincidence कह लीजिए, this is बिल्कुल तुम सही कह रहे हो यार. the stars have aligned, कहाँ the ducks are in a row. जैसे आप कह रहे थे कि पिछले 2 हफ्तों
इस period के दौरान, I mean, they were hated. Not only were they hated, they were ridiculed. Yeah. लेकिन अब यार लोग ये जो attraction जो build रही है, it's building up and build रही है. Build रही है. build रही है. तो this traction जो build रही है, ठीक है ना? It should be a new word. Build रही है. Build रही है ये traction build हो रही है. Make this viral. Build रही है. Build रही है ये traction. हाँ. So the momentum that he's gaining. Yeah. The momentum जो build रही है. हाँ. वो यार, that is surprising, man. क्योंकि liberals are getting a lot more popularity because of the way Carney is holding himself, the way he's carrying himself. ये जो carbon tax का जो elimination जो होगा first April, बहुत बड़ी बात है यार. Big thing, slap in the face for a lot of people. हालांकि rebate शायद नहीं मिलेगा. वो I was very happy with that, but we'll save so much in taxes. Yes. Taxes that were being wasted, not wasted, but being cycled. वो जो हम दे रहे थे वो हमें rebate की शक्ल में लौटा रहे थे. ठीक है यार, उसकी वो मतलब उसको ज़्यादा तजुर्बा नहीं. He doesn't have experience of the House or the Senate or anything like that, but he's an economist. Man. He's an economist, a finance guy, and he's got a sharp mind. He's the right man for the right job at the right time. अब जैसे ट्रम्प को देख लो, वो कहाँ साले को उसको कहाँ कांग्रेसमैन वाली जॉब मिली या सेनेट में, उसने कभी पॉलिटिक्स में काम ही नहीं किया उसने. ट्रम्प तो मेरा ख्याल है उसको तीसरी जमात भी उसने शायद मुश्किल से पास की होगी. मैट्रिक पास. हाँ, उसको तो एडजेक्टिव्स ही नहीं आते डिक्शनरी के. गुड, ग्रेट, बस इससे ज्यादा नहीं. That's good. It's great. It's good. Better than anything else. Brilliant. पता नहीं यार. तो बहरहाल उसका जो ट्रम्प्स cousin Poilievre has been ugly cousin. हाँ, he's been. The Carney took the carbon tax away apparently from 1st April. तो अब वो बेचारा भौंक रहा है. वो है तो किसी का साला तो होगा. वो अपनी वो भारी आवाज में, he can't take the carbon taxes away. Yeah. You need to go to the parliament for that. And we're angry here as Canadians. We're angry. We're angry. वही angry है बस. वही angry है साला. And PP, I don't care. I'm liking the liberals. I'm loving the liberals again. I was thinking of not voting but Abdullah, for the libs. The issue, the whole thing that people were down on them for. There's a lot of conservatives still here in Canada who are down the center. They're not right-wing fascist type, conservatives, but they also are very troubled and concerned about the transgendered or the gay and lesbian activities. And I think what Carney is a very smart guy. He understands the sentiment of the masses in the country. He does. He does. क्या ख्याल है तुम्हारा? मतलब No, absolutely. जैसे वो क्या पाकिस्तान कह रहा हूँ, पाकिस्तान ये यार मेरे दिमाग में ये पाकिस्तान को छोड़ो. ये जो कनाडा में जो I think the population is 35 million, I think. 36, I think. 38 in the 38 million. And out of them, are you telling me that the entire how much more than 50% are very pro LGBT? I don't think it's like that. No, it's not like that. Sometimes a lot of people can't say much, so they keep quiet. Keep quiet about it. Lekin, that's an interesting segue. No, because I think Carney's feeding on that. Carney is going to feed on that. I'm here for you, bud. I'm here for you guys. Yeah, I mean he's going to basically do whatever the Americans don't like or Trump doesn't like. Trump doesn't like. But he's, like they say in Islam, Islam's economic system is the best. I'm going somewhere with this. Yeah. जहाँ मतलब वो फ्री मार्केट एंटरप्राइज भी, वो कैपिटलिज्म भी वो शामिल करते हैं और अपना एक वो सोशलिज्म भी शामिल करते हैं. दोनों एक उसको मतलब कंबाइन करके अपना इकोनॉमी बनाते हैं. You can't get a better economic system than that. Do whatever the hell you want. There's no cap. Yeah. But nobody should be hungry at night. Absolutely. And in that fashion, what Carney is doing is he's developing an identity for Canadians and bringing their pride back. Not the gay pride back, but just like the pride back in your nation. Yeah. And he's also catering a little bit to the conservative community in Canada. वो तो कर रहा है ना. He's keeping both sides happy. Keeping both sides happy. Yeah. And he's guessing. And he's also not bowing to the Americans. So ये बहुत बड़ी बात है यार. And that's the secret. He's only been here since 3 days, 4 days officially. I mean, he was prime minister last week, but he was sworn in. He's sworn in Friday, so officially was his second day on the job, and he's already had a huge impact. It's like he's coming in blasting, man. Yeah. Something else that he needs to do, and I think this is an interesting segue, is
pay a little bit more attention to commercials and advertisements. We're going to show you something right now, and we won't say much. Maybe he will, but I will not say as much. आप पहले जरा इस पोस्टर को देखिए. So you saw that. तो लॉटो मैक्स पे अब मुसलमानों का, हिजाबी औरतों का क्या होता है, वो कब्जा हो गया है. कब्जा हो गया. बाकी किसने क्या लफ्ज यूज किया यार तुमने? कब्जा हो गया. कब्जा हो गया कसम से, क्योंकि यार लॉटो जहाँ इस्लाम, लॉटो गैम्बलिंग जो है वो अच्छा गुनाह है या मकरूह है? हराम है. हराम हराम है, वो हराम है, बेसिकली हराम. और हमारे इसमें एडवर्टाइजमेंट्स में हमारी जो बहनें जो हैं इस्लाम में, वो हिजाब पहन के बड़ी But you know what? There's two sides to this coin, and no pun intended. आप जिसकी बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, maybe this is an opportunity for Muslim people to rise a little above and beyond the stigmas attached to them. ये नहीं हराम काम ना करें, but there's stigmas attached to Muslims कि भाई हम ये इन चीज़ों से दूर रहते हैं, इंडोर्स नहीं करते बहुत सी चीज़ों को. Yeah, there is a hijabi lady in that, and apparently she's representing the lottery, which she shouldn't be buying herself. लेकिन जो खरीदते हैं उनके लिए तो एक नेक नियति का मैसेज है, मुझे लगता है ये, कि भाई लॉटो जो है ऐसी चीज है कि उसमें there's diversity, there's culture, there's tradition, there's that's what Canada is all about. तुमने यार बहुत ही पी रखी है. मैंने पी रखी है. वैसे तुम्हारा रोजे में पी रखी लग रहा है तुम्हें बहुत. वैसे लेकिन जिस तरीके से तुमने इसको आर्टिकुलेट किया है ना, कोई साला अगर कोई वो समझदार अक्लमंद भी अगर वहां बैठा हुआ कह रहा होगा वो यार, because the moment you say diversity, सब चुप हो जाते हैं. लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि कब तक हम केटर करें मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ. हाँ, अगर इस्लाम ने कहा कि ये ना करो तो ना करो भाई. हाँ, लेकिन तुम ये कह रहे कि if you use the argument that you say, okay, Harun, I understand that, but you tell me where you draw the line. हम मुसलमान हैं, क्रिसमस में हमको क्रिसमस ट्रीज लगी हुई लगे हुए हमारे घरों में. हाँ, तो और हैलोवीन हम सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लाइन कहाँ ड्रॉ करें? अब ये हमारी जो सिस्टर्स, हमारी बहनें जो हैं हिजाब पहनी हुई हैं, लॉट मैक्स, लाइन कहाँ ड्रॉ करें? मतलब देखिए, वो तो कोई भी एक्टर होगी, हो सकता है वो मुसलमान ना भी हो, लेकिन मेरा ख्याल है सारा जो, I don't want to say use the word ilzam, yeah, but the onus lies with the people who made that commercial, right? Very good point, Abdullah. That is the most important point. Now, I don't want to stir up shit. That's not true. I do. I think you should. I will stir up shit. I don't have any shit, man. We haven't eaten anything for a couple of days. No, I haven't. Yeah, well, this is my fourth rosa going today. Yeah. Anyway, fourth, fifth time. We only have 2 minutes. Let's so wrap this up. Make your point. This is a subtle attack on Islam by these organizations. बहुत से लोग ये सोच रहे हैं इनकी तरह. Okay, it's all inclusive. Come on, be part of the lot of mag. Wear the hijab. It looks great. It's a subtle attack. Wake up. Smell that damn samosa? नहीं, कड़क चाय. Karak chai. That rubza. Jo bhi hai. Smell it. Smell it. इसमें जरूर इसका पोलिएवर का हाथ होगा. क्या लग रहा है? That's why my message was to Mark Carney. Mark, you're fixing a lot of things. Please fix this. Please. ये अच्छा नहीं किया आपने. यार क्या पता वो मुसलमानों के लिए वो करे जो ट्रूडो साला ख्वाब में देख रहा था. हाँ. तो आप लॉटो मत खेलिए. हाँ. ना खेलिए. हाँ. और अगर खेलें तो हिजाब पहन के खेलें. आयतुल कुर्सी पढ़ के पहले फूंके फिर खेलें. उसको हलाल कर दें. उसको ज़कात में पूरे माल को ज़कात में दे दें. हाँ. Zakat. I say, if you win the lottery, that's an excellent question for you guys. If you win the lottery and you put it to zakat, is that valid? It is valid. Zakat is it's God's money. It's going towards money, a doesn't good matter where cause. the hell it comes from. It could be blood money, but As long as you don't use it on yourself, I think you're okay. Bahral, that's a topic for another day.
अभी हमें ब्रेक लेना होगा क्योंकि एक और सेगमेंट रहता है और उसके बाद हम वापस आएंगे। बिल्कुल वापस आएंगे, रिवर्स। हम वापस आएंगे यहाँ क्योंकि हमें एक और जरूरी मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना है। बिल्कुल। प्लीज डोंट गो एनीवेयर, we'll be right back. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. आओ चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार, चूड़ियां झुमके जूते पान लगाए, मेहंदी ले सामान, लेडीज जेंट्स कपड़े सूट, शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार, चीज मयारी सस्ते दाम, वहाँ की हर शे आए काम। आओ चले चलो चले। Eid Bazaar, presented by Avaz Entertainment and PGA International at Galaxy Grand Convention Center, Brampton, on March 28th, 29th and Chand Raat March 30th. आना मत भूलिएगा, हम आपके मुंतजिर रहेंगे। प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो। आई लव यू नैना। नैना मुझे लगा काफी अच्छे से आप डायलॉग बोल रहे हो। ये हाँ, मुझे वो डर याद आ गया, मुझे डर लगने लगा शाहरुख खान के डायलॉग बोलते हुए, मैं डर गया। एनीवेज काफी अच्छा, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरे इस आज के इस सेगमेंट का शुरुआत इस बहुत ही आइकॉनिक डायलॉग के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसका सबसे आइकॉनिक सीन का डायलॉग। बहुत से इन्होंने डायलॉग लिखे थे, पूरा पेज भरा, लेकिन मेरी नजर इसी पे टिक गई और मेरा दिल भी इसी पे आ गया। पर आपने इसको भी सही से नहीं बोला, ये नैना नहीं, नैना नैना नैना, कितना खूबसूरत नाम है नैना। चलिए बता दीजिए अपने दर्शकों को किस पे आप करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरे बॉलीवुड के फिल्मी कीड़ों, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी मूवी जो रोमांस, ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट से भरपूर थी। इसका डायलॉग आपने बोल दिया है, ड्रामा, मेलोड्रामा, इमोशंस। इमोशंस, आई मीन शाहरुख खान की मैं आपको एक और गेस देती हूँ, जैसे इन्होंने बोल दिया नैना, तो शाहरुख खान की सबसे रोमांटिक, सबसे ज्यादा इमोशनल, एक सैक्रिफाइस से भरी हुई मूवी जिसका नाम है कल हो ना हो। कहते हैं जब रिश्तों पर मौसम का रंग चढ़ता है तो वो और भी मजबूत हो जाते हैं, पर कुछ रिश्ते दबे पांव आकर मौसम पर भी अपना रंग छोड़ जाते हैं। हंसो, मुस्कुराओ, आज के लिए जियो, क्या पता कल हो ना हो। नैना कैथरीन कपूर। रोहित पटेल। रोहित न्यूयॉर्क में अकेला रहता था और पिछले 3 साल से उसने एडवर्टाइजिंग में कोई तरक्की नहीं की। थैंक गॉड तुम दूसरी न्यूयॉर्क की लड़कियों की तरह नहीं, ना तो तुम सेक्सी हो, ना तो तुम खूबसूरत हो, और तुम्हारे पास मेरे लिए हमेशा वक्त होता है। आई लाइक यू।
थैंक्स। वो बेचारा इतना भी कूल नहीं था जितना वो समझता था। फिर भी he never stopped trying. अमन, अमन, तुम ना जाने कहां से आए और कितना कुछ बदल गया। जिंदगी में पहली बार इस दिल ने किसी को दिल से चाहा। Why do I love him? Why do I love him, मामा? कोई पागल ही तुमसे प्यार नहीं करेगा नैना। लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। एक ऐसी दर्द भरी कहानी जो मेरी फेवरेट है। आज तक हमने जितनी मूवीज की हैं वो इनकी फेवरेट थी। मैंने प्यार किया, लेकिन ये भी है मेरी फेवरेट। दिस इज वन मूवी विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अगर आप कहें कि मेरी जिंदगी का मोटो क्या है, वो शायद यही है। इस मूवी में शाहरुख खान का जो रोल था, शायद मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उस कैरेक्टर में देखती हूँ कि अपने आसपास की एक छोटी सी दुनिया को वो हमेशा खुश रखना चाहता है और कुर्बान कर देता है अपनी जिंदगी बेशक। बिल्कुल बिल्कुल कुर्बान, मतलब चाहे अपनी जिंदगी में आपको कुछ भी, कितना दर्द, कितनी प्रॉब्लम्स हो, पर आप चाहते हो आपके आसपास जो छोटी सी दुनिया, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके दोस्त, जो भी आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपसे थोड़ी सी भी वाइब्रेशंस एक्सचेंज करता है, बस वो खुश रहे। ऐसी एक पर्सनालिटी लेके शाहरुख खान ने अपना कैरेक्टर हमें अमन के किरदार में हमें इस मूवी में दिखे। बहुत ही बखूबी उन्होंने ये किरदार निभाया। बेहतरीन। मैं सोच ही नहीं सकती कि इस तरह का किरदार कोई और निभा भी सकता है। बहुत ही अच्छी। वो मतलब रोल ही अगर शाहरुख खान ना करते तो वो उसके साथ इंसाफ नहीं होता, क्योंकि कुछ रोल्स होते हैं वो कोई भी एक्टर आके कर दे अच्छा लगता है, लेकिन ये रोल मैं समझता हूँ कोई शाहरुख के अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। बिल्कुल, मैं आपसे इस बात पे बिल्कुल अग्री करती हूँ। 2003 में आई हुई ये मूवी, स्टार कास्ट में आपके हमारे बहुत ही रोमांटिक शाहरुख खान, और उनके साथ निभाया, बहुत ही अच्छा साथ निभाया प्रीति जिंटा नैना के किरदार में। एक अच्छी लुक दी उनको, एक अच्छी डिफरेंट किरदार में वो हमें इसमें नजर आई। लाइक वीर ज़ारा के बाद बिल्कुल उनको हमने इस तरह से देखा, काफी अच्छी लगी। और जो एक और बहुत अच्छा आइकॉनिक कैरेक्टर हमें लगा इस मूवी में, हमारे सैफ अली खान। इन्होंने काफी अच्छा इस मूवी में, इस टाइम तक आकर उनका करियर ग्राफ बहुत ऐसा सा था, मतलब बहुत अच्छे रोल्स उन्हें नहीं मिल रहे थे, बट इस मूवी में उन्हें काफी पसंद किया ये मिला, फिर दिल चाहता है, इसके बाद ही मिला था आई नो दिल चाहता है, एंड देन ही केम अप विद वन सोलो हिट ऑफ हिज ओन व्हिच वाज हम तुम। काफी अच्छा उनका एक करियर का ग्राफ इस मूवी के बाद चढ़ता ही गया। तो उन्होंने रोल भी काफी अच्छा किया था। जितने भी, अगर मैं शाहरुख खान के कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स एंड मूवमेंट्स याद करती हूँ, तो सेम सैफ अली खान के भी उतने ही अच्छे मोमेंट्स हैं। जिस तरह से उन्होंने इस मूवी में एक गुज्जू कैरेक्टर निभाया, बहुत ही अच्छा था। तो और किसी को भी उस कैरेक्टर से भी आसानी से प्यार हो जाएगा। रोहित। सो आज हम बात करने वाले हैं अमन, नैना। रोहित हमारे बीच अभी नहीं है, बट हम घर चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन इस फिल्म में असल में सारा चक्कर ये था कि सारे कैरेक्टर्स बहुत रिलेटेबल थे और लवेबल थे कि उनसे वाकई, जैसे आपने कहा, आसानी से प्यार हो जाए। आदमी इतना इन्वॉल्व हो जाता है उस फिल्म को देखते हुए कि दिल नहीं चाहता कि ये मूवी खत्म हो और हमें घर जाना हो। मतलब ऐसी मूवी थी ये सारी चीजें। मतलब मैं आपसे अगर मैं सवाल करूं कि ये मूवी का डायरेक्टर कौन था? डायरेक्टर कौन था, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये सवाल एक्चुअली मैं खुद बड़ी फैसिनेट हुई थी जब मुझे पता चला इस मूवी का डायरेक्टर, क्योंकि हम सबको पता है दिस मूवी इज करण जोहर मूवी। हाँ, मतलब प्रोडक्शन तो उन्हीं की है, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, एवरीथिंग करण जोहर, बट द डायरेक्शन इज निखिल अडवाणी। ओके। सो निखिल अडवाणी का ये फर्स्ट डायरेक्टोरियल डेब्यू था। उन्होंने इससे पहले कुछ होता है में करण जौहर जी को असिस्ट किया था, लेकिन जब ये मूवी बन के बाहर आई, करण जौहर आज भी इस चीज को पछताते हैं कि ये मूवी मुझे डायरेक्ट करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा डायरेक्शन उन्होंने किया। आई डोंट नो, मतलब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक स्टोरी, एक स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन,
So how it is different? Like आप इस डोमेन में हैं, आप काफी मतलब एक स्टोरी तो आप लिख देते हैं कागज के टुकड़े पे, स्क्रीन प्ले उसकी ये होती है कि उसमें ज़ाहिर फिर एक्शन भी आते हैं कि भाई स्क्रिप्ट में तो सिर्फ आपकी लाइनें लिखी होंगी, लेकिन उसके साथ क्या क्या मूवमेंट हो रही है, कहाँ से कैमरा इस तरफ जाएगा उस तरफ जाएगा, ये सारी मूवमेंट स्क्रीन प्ले में लिखी जाती है। और फिर डायरेक्शन तो उसको बाकायदा आपको इम्प्लीमेंट करना हो सारे एक्शन को। मैं तो कहता हूँ कि अच्छा किया करण जौहर ने नहीं किया, मतलब करण जौहर इज अ गुड डायरेक्टर, लेकिन शायद जो ये निखिल अडवाणी ने काम कर दिया, मेरे ख्याल है करण जौहर साहब नहीं कर पाते। इस डायरेक्शन का एक एक जो मुझे चीज पसंद आई, आप अगर इनके कैरेक्टर्स उठाओ, बहुत छोटे छोटे रोल्स हैं, लेकिन इंडिविजुअली उन रोल्स को कितना बखूबी स्क्रीन पर हमें दिखाया गया है। अगर मैं बात करूं जेनिफर, जया बच्चन की, बहुत छोटा सा उनका कैरेक्टर था, लेकिन क्या उन्होंने एक्टिंग की है, क्या उनका वो पार्ट था। लिलिटे दुबे, बहुत छोटा रोल था, सेम डेलनाज, और आप छोटे छोटे सतीश शाह, या मैं सबसे अच्छा रोल आपको बताऊं, सबसे छोटा रोल एक कैरेक्टर है इसमें, सुलभा आर्या नाम की हमारी एक लेडी है, जो कि काफी अच्छी अदाकारा है, छोटे रोल करती है हमारी, कैरेक्टर आर्टिस्ट बोल दो। उन्होंने जो रोल निभाया, शी वाज द मेड ऑफ सैफ अली खान। हाँ, वो बड़ा अच्छा रोल था। एंड द वे दे पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर कांताबेन, एंड द वे दे पोर्ट्रे इट, यू नो, 2-3 डायलॉग्स है, इतना छोटा रोल है पर क्या आइकॉनिक रोल है। सो इस चीज के लिए मैं डायरेक्टर को सीरियसली बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, किस तरह से उन्होंने एक एक कैरेक्टर को आइकॉनिक बना दिया। आज हम जानते हैं कांताबेन को कांताबेन के नाम से, कि वो कैरेक्टर बिना किसी बड़े रोल के इतना पॉपुलर हो गया। और इस मूवी में थोड़ा वो आपको फर्स्ट टाइम आई गेस होमोसेक्सुअलिटी भी हमें दिखाई गई। अब तक इंडिया बॉलीवुड की किसी मूवी में हमने ऐसा कुछ लोग वेट कर रहे थे करण जौहर कब ये रंग दिखाएंगे अपने, लेकिन आखिरकार उन्होंने इस मूवी में दिखाई दिए। लेकिन वो भी मतलब एक अच्छे टेस्ट में, कोई उसमें वो होता ना, it did not leave a bad taste in your mouth. It never, like we were too compassionate and we were directly connecting to that thing. बिल्कुल, the way they did it and the way Shah Rukh and Saif Ali Khan did those scenes, those were really good, and they just did a kind of humor for us. It was quite comic. इसमें मतलब लाइट कॉमेडी भी थी, और वो ना इमोशंस इस तरह के थे कि जो ओवर द टॉप नहीं होते, जैसे अक्सर फिल्म होता है ना, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, धाड़े मार के रो रहे हैं। इसमें बहुत इमोशनल जो होता है ना, हल्की सी सिसकी आना, आंख नम हो जाना आंसुओं से, तो वो जो कैप्चर किया था हर लम्हा। इस जो अभी मैंने डायलॉग पढ़ा था, आप सीन देखिएगा, वो पूरा बहुत लंबा मोनोलॉग है उनका, तो जिस तरह वो अपनी आंखें उनकी नम हो जाती हैं, और फिर नैना की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, तो वो जो मुझे बेहतरीन सीन ये लगता है। हालांकि पूरी फिल्म जबरदस्त है, बहुत ही। मैं सीरियसली ये मूवी इतनी अच्छी है, मैं खुद अपना कोई फेवरेट सीन नहीं, जितना मतलब ये मूवी आई वुड से ये आपको एक ही हार्ट बीट में रुलाती भी है और हंसाती भी है। तो ये दिस इज अ सिंपल जुमला मैं जो इस मूवी के लिए कहूंगी कि इट हैज लाइक the capability to laugh and cry in one single heartbeat. And the experience जो इस मूवी को देखने का था, और जो छोटे छोटे कैरेक्टर से जुड़ने का था, it was beyond words. It was incredible. मतलब मैं हर बार ये मूवी, कोई भी मैं सेगमेंट करती हूँ ना, तो मैं हमेशा वो मूवी एक रात पहले या जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं एक बार देखती हूँ। क्या खुशी मिलती है, आप ये मूवी को देखो, कुछ जितना मैं हंसती हूँ उतना ही मैं इस मूवी को देख के रोती हूँ। और मैं बताना चाहूंगी, जब ये मूवी मैंने पहली बार थिएटर में देखी थी, it was so difficult to, after like the movie finished and I was just sitting on my chair and crying and I cried for long hours that what happened, like, और अभी ये री-रिलीज हुई है, and recently I have seen people posting their कल होना और री-रिलीजिंग, they actually went to the theater, इंडिया में अभी हुई है, like एक महीना पीछे आपका एक री-रिलीज हुई है थिएटर में, तो they made reels की नहीं यार 2003 में देखी थी, अब नहीं रोऊंगी, but look the way like she again cried, the girl who was just watching that movie. फिल्म भी क्या आप कोई सीन उठा के देख लीजिए, आपकी आंखें नम ना हो जाए, तो मैं बाकी अपना नाम बदल दूं। एंडिंग देख लीजिए, मतलब, और गानों पे तो आपने बात ही नहीं की अभी तक। क्या गाने I mean, पहली बार अगर आप देखें तो शंकर एहसान लॉय ने जौहर प्रोडक्शन जी के साथ काम किया, और क्या काम किया, क्या गाने थे। ये आइकॉनिक गाना जो हम सभी का फेवरेट है, वो तो खैर बेहतरीन, खासतौर पर उसका सैड वर्जन, तो मैं तो बस वो तो मैं अभी भी अगर सुनता हूँ, मैं हूँ गम को छुपाए, तुम भी चुप हो मैं भी चुप हूँ, कौन किसे समझाए। क्या लिखा है जावेद अख्तर साहब जी ने, उनकी राइटिंग हमेशा से बहुत अच्छी है, पर बहुत प्यारे गाने लिखे हैं। शंकर एहसान लॉय जी का म्यूजिक, उस पे 4 चांद, मैं तो कहता हूँ 12 चांद लग गए।
क्या गाने, मतलब आज भी सुने तो किसी गाने में खुशी से भरपूर आपके सीन्स हैं, खुशी, आप खुशी में नाच रहे हो। माही वे एक ऐसा गाना है जो हर किसी शादी में बजा, हर किसी संगीत में उस पर परफॉर्मेंसेज हुई है। एंड वेयर एज आप जब उसके एंडिंग कल हो ना हो गाने को सुनते हैं तो उतना ही दर्द भरा वो गाना है। हाँ, बस वो गाना ऐसा कि दोनों वर्जन बहुत जबरदस्त हैं, बहुत ही बढ़िया है। सैड वर्जन में भी और जो उसका वो मेलो वर्जन है वो भी बेहतरीन है, मतलब वो म्यूजिक छा जाता है दिमाग पे। बिल्कुल, एक गहरी छाप छोड़ता है जब भी आप वो गाने सुने। हाँ। स्टार्टिंग हो चाहे आपका डिस्को सॉन्ग हो या माही वे हो, हर तरह का म्यूजिक इस मूवी ने हमें दिया और काफी एंटरटेनिंग म्यूजिक था, काफी एंटरटेनिंग। और जहाँ म्यूजिक की बात कर रहे हैं वहीं पे अगर डायलॉग्स की आपने शुरुआत तो कर दी थी, कुछ और बहुत आइकॉनिक डायलॉग्स है, अगर आप हमें कुछ पढ़कर बताएं। हाँ, इसमें लिखे तो बहुत हैं लेकिन जो एक और मुझे एक जो मेन आइकॉनिक डायलॉग है कि जियो खुश रहो, जियो खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। तो ये सब कुछ हम भी आपको यही कहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी भरपूर जिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और इस तरह से जिए कि कल नहीं है, हमें नहीं मालूम कल क्या होने वाला है। आज जितनी खुशी, जितना जी सकते हैं उतना जी लें। अपने आप को तकलीफ मत पहुंचाइए, खुश रहिए। वाकई ये मैसेज जो कह रही हैं शिल्पा जी बहुत मेरे दिल से निकलता है। आज भी मैं किसी को समझा ही रहा था कि भाई कल ना हो ना हो, आप बस अपने आप को तकलीफ मत पहुंचाइए। हाँ बिल्कुल, आज की खुशियों को अपने लिए जिंदा रखिए, अपने लिए बटोर लीजिए, ताकि कल तक भी उसे, अगर कल है, हमें वैसे नहीं मालूम कल है या नहीं है, अगर कल है तो ये खुशियां कल तक भी ट्रांसफर हो जाएंगी। और कल होगा तो शायद परसों ना हो, तो कुछ नहीं पता। इतनी खुशियां बटोर लीजिए। चलिए अब आपके फेवरेट सेगमेंट हाँ, मैं उसी का इंतजार करता रहता हूं। हमारे फन फैक्ट्स इस मूवी के। तो इस मूवी की पहली चॉइस शाहरुख खान नहीं थे। मूवी की पहली चॉइस सलमान खान थे, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज विद द जोहर प्रोडक्शन, अच्छा वो इश्यूज हो गए, नहीं किया। एंड आई एग्री, मैं कुछ हद तक इस बात से सहमत हूँ कि शाहरुख खान से अच्छा ये रोल और कोई नहीं कर सकता था। सलमान खान तो अपने मसल दिखाते ही वो नहीं, गुड एक्टर एंड आई सॉ लाइक ही वाज वेरी, करण जौहर वाज वेरी फैसिनेटेड विद सलमान खान एज अ रोल ऑफ अमन। तो अगर आप देखो तो अमन ही कैरेक्टर था इसमें। हाँ, कैरेक्टर का नाम वही रखा उन्होंने, फिर इसीलिए अमन को प्रपोज किया एंड समहाउ नहीं हो पाया, बट दैट्स ओके। बट शाहरुख खान के जो वो आंसू टपकते हैं, मैं इसका कोई मुकाबला नहीं। शाहरुख खान की आंखें टपके बिना, आंखें नम होना ही बहुत बड़ी होती है, वो पता चल जाती है, चमकने लगती हैं दूर से उनकी आंखें। The way I don't know how he do it, मुझे नहीं समझ आता। कभी मैं कोशिश करती हूँ, मुझे पसंद है ये सब एक्टिंग करना और ये सब, तो आंसू निकलते हैं, बट द वे शाहरुख खान के आंसू की अलग ही बात, बिल्कुल अलग बात है। और एक्ट्रेस के रोल में प्रीति जिंटा, जिन्होंने बहुत ही बखूबी ये नैना का किरदार निभाया, हमें बहुत पसंद आया, मुझे बहुत पसंद। हालांकि उन दिनों मेरे जहन में जहाँ तक मुझे याद है काजल और रानी मुखर्जी ज्यादा चढ़ी हुई थी, ज्यादा शोहरत थी ऐश्वर्या राय की, लेकिन प्रीति जिंटा ने जिस तरह इसको निभाया, मेरे ख्याल है अगर बाकी कोई होता ना। हाँ, तो इसकी इनिशियल चॉइस जो आपके करण जौहर की चॉइस थी वो थी करीना कपूर। बस बिकॉज़ शी डिमांडेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर दिस मूवी and then the role offered चलिए बहुत अच्छा हुआ कि सलमान खान मिले नहीं और उन्होंने पैसे ज्यादा मांग लिए, वरना ये शायद आज हम यहाँ बैठ के इस पे तबसरा नहीं कर रहे होते। बिल्कुल नहीं कर रहे होते। और जया बच्चन के रोल के लिए पहले आपने किया था नीतू सिंह को। अच्छा। नीतू सिंह के पास भी कुछ डेट्स का इशू था, एंड फॉर दिस हमारे सैफ अली खान के रोल के लिए, जो मैं चाहती थी कि कभी कोई और ना करता, वो मुझे इतना पसंद आया था इस मूवी में, क्योंकि उनकी एक पहली ऐसी मूवी जिसने बहुत लोगों को उनका फैन बनाया था, बहुत फैसिनेट किया था। तो उनका रोल पहले ऑफर हुआ था अभिषेक बच्चन और विवेक ओबेरॉय को। ओह अच्छा, चलिए बड़े अच्छा मसला है। हाँ, रिप्लेस्ड। वैसे अभी मैं जहन में ख्याल आ रहा था कि अब इसको दोबारा मेरा ख्याल बनाया जाए, क्योंकि माशाल्लाह इनके सैफ अली खान और शाहरुख खान के बेटे तो जवान और हैंडसम हो गए। प्रीति जिंटा की कोई बेटी है ये मुझे नहीं पता। नहीं, कोई नहीं, मैं रोल कर। हाँ, आप करें, इनको आप मुझे ले लीजिएगा। इब्राहिम और क्या नाम? आज मैं बिल्कुल नैना आपके लिए बन के आई हूँ, एंड आई एम श्योर लाइक आई एम डूइंग जस्टिस। सो अगर आपको लगता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अब तक हमने इतनी सारी लुक्स आपके लिए रिक्रिएट की है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ करते हैं, तो आपको कौन सी लुक हमारी सबसे अच्छी लगी, एक बार बताइएगा जरूर। अच्छा, आप वैसे इस मूवी में दिखाया गया कि मूवी न्यूयॉर्क में शूट हुई है, लाइक दे हैव शोन दैट न्यूयॉर्क इज लाइक बिग सिटी, एवरीबॉडी इज सो बिजी। द फर्स्ट सीन वेयर आपकी जो प्रीति जिंटा है वो जॉगिंग कर रही है, बट एक्चुअली हाफ ऑफ द मूवी शॉट इन टोरंटो। अच्छा, यस, अरे वाह। सो दैट वाज अ फन फैक्ट टू शेयर कि न्यूयॉर्क उनको थोड़ा महंगा पड़ रहा था। आई डोंट नो टोरंटो भी कैसे सस्ता पड़ सकता था। अब टोरंटो महंगा हो चुका है, शायद 2003 में टोरंटो सस्ता था। सो अ लॉट ऑफ द सीन्स ऑफ द मूवी वर शॉट इन टोरंटो। अच्छा, जबरदस्त, बिल्कुल। हाँ, चलिए एक और बता दीजिए। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी कि ये मूवी किसी मूवी से इंस्पायर्ड थी।
किसी इंग्लिश फिल्म से? नहीं, किसी हिंदी फिल्म से। अच्छा, साउथ की होगी यकीनन। नहीं, आप कैसे, आप सीरियसली नहीं जानते? नहीं वाकई नहीं। ये मूवी इंस्पायर्ड थी, आप जरूर जानते होंगे। ये मूवी इंस्पायर्ड थी मूवी आनंद से। द कैरेक्टर, अच्छा, उनके वो बीमार होते हैं वो भी। अमन का जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल आनंद का कैरेक्टर राजेश खन्ना से इंस्पायर्ड था। अच्छा। द वे, बिकॉज उनका भी लाइफ में सिर्फ यही मोटो था। ही वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सेम आपका शाहरुख खान, एंड देन ही इज आल्सो कीप्स ऑन जस्ट डिलीवरिंग हैप्पीनेस अराउंड द वर्ल्ड, एंड शाहरुख खान आल्सो डूइंग द सेम. So it was inspiration. I won't say it's a copy. It's an inspiration. That's why I said it's an inspiration. और इस मूवी के लिए जैसा कि आपने बोला 2 बड़े नेशनल अवार्ड्स गेस कर सकते हैं आप. 2 नेशनल अवार्ड्स. बेस्ट एक्टर. जी, फिल्म फेयर एंड ऑल हमने काफी मूवीज में दे दिए, पर इस मूवी में 2 बड़े नेशनल अवार्ड्स गए हैं. तो आप अगर गेस कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता दूं. एक्टर एंड फिल्म. नो, नॉट एक्टर. शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड इस मूवी के लिए नहीं मिला. सो ये है कि म्यूजिक एंड सिंगर सोनू निगम, जो आज भी इस गाने के लिए बहुत सोनू को तो बेहतरीन जान डाली है उन्होंने इस कल हो ना हो सॉन्ग में. ये गाना जितना ब्यूटीफुली लिखा गया है, जितना इतना अच्छा म्यूजिक है, अगर सोनू निगम ने ये गाना नहीं गाया होता, इस गाने में उतनी जान नहीं है. बेशक. और आज तक वो गाना जिंदा ही मेरे ख्याल उनकी आवाज की वजह से. क्या आवाज है, मतलब इतनी सोलफुल आवाज उनकी, और उतने अच्छे वो इंसान भी है. तो उन्हें इस मूवी के लिए, इस सॉन्ग के लिए नेशनल अवार्ड. और दूसरा नेशनल अवार्ड हमारे शंकर एहसान लॉर्ड फॉर अ कमेंडेबल म्यूजिक. क्या म्यूजिक दिया उन्होंने हर किसी के ज़हन में. आज भी कल हो ना हो, कोई जस्ट एक वो धुन बजाए एंड यू गेट ईदर टीयर्स इन योर आईज और अ स्माइल. यू जस्ट लॉस्ट इन द मेमोरीज ऑफ कल हो ना हो. वाकई कल हो ना हो. चलिए इसी नोट पर अलविदा लेते हैं. तो आपसे फिर मिलते हैं बहुत सारी खुशियों के साथ. अपना दिन अच्छे से बिताइए और इसी तरह से अपनी जिंदगी जिए कि कल हो ना हो. खूब सारी खुशियाँ खुद भी लीजिए और आसपास आपके लोगों को भी दीजिए. और जाने से पहले सिर्फ एक और लाइन कहता जाऊंगा, ये शाहरुख खान के लिए कि मैं खुद एक ज़माने में एक्टर बनना चाहता था, लेकिन अगर मुझे एक रोल ऑफर किया होता बॉलीवुड में, मुझे पिक करना होता, तो मैं ये पिक करता. और शाहरुख खान को मैं ये कहूँगा, काश मैं तुम्हारी जगह पे होता. काश. हाँ, ये बहुत अच्छा डायलॉग है जब सैफ अली खान उनसे बोलते हैं कि मेरी जगह तुम होते तो क्या करते. काश मैं तुम्हारी जगह होता. शाहरुख. चलिए देखते रहिएगा. हम ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट में हाजिर होंगे और शिल्पा जी आपसे अलविदा कहना चाहेंगे. शबा खैर. टेक केयर. विल सी यू सून. बाय बाय. Hey guys, welcome to another episode of चाय पे चर्चा. और मैं आप सभी का दोस्त और होस्ट दक्ष. आज के इस एपिसोड में मैं अकेला बैठा हूँ और जब आप ये एपिसोड देखेंगे तब आईपीएल का पहला मैच हो चुका होगा. तो मैंने सोचा क्यों ना आईपीएल के बारे में कुछ डिस्कशन किया जाए, क्योंकि क्रिकेट हम सबको पसंद है. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज आईपीएल का पहला मैच अब आप देख रहे हैं हो चुका है, केकेआर वर्सेस आरसीबी का. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आरसीबी कम से कम ट्रॉफी ना जीत पाए तो ये मैच तो जीत ही जाए. क्योंकि अगर हम बात करें ट्रैक रिकॉर्ड की, स्पेशली केकेआर के अगेंस्ट आरसीबी का, बड़ा खराब रहा है. और आरसीबी वहां पे हमेशा हर साल इतने सीजन्स में ट्रॉफी लेस रही है. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आईपीएल की खास बात यह है, यहाँ पे 9 टीमें कंपीट करती हैं एक टीम से फाइनल खेलने के लिए. वो है चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी. भले ही अब महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दी हो, लेकिन अभी भी कप्तान वही हैं. उनके लिए पूरा रूल चेंज कर दिया गया है बीसीसीआई द्वारा, माफ कीजिएगा. जब ये रूल चेंज हुआ तो सबको पता था ये एमएस धोनी के लिए किया गया. 3 जो स्टार्टिंग के मैच है, तीसरा मैच चेन्नई का मैच है मुंबई के साथ, जो कि एल क्लासिको ऑफ आईपीएल माना जाता है. तो हम बात करते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए. सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग जो ऑक्शन हुआ था, जो कि था ऋषभ पंत का. जी हाँ, 27 करोड़ का खरीदा गया उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा. अभी तक का सबसे महंगा प्लेयर उनको बताया जा रहा है. लेकिन क्या ये कोई कर्स है जो हर प्लेयर के साथ जुड़ जाता है जो सबसे महंगा बिकता है? क्योंकि जो भी प्लेयर अभी तक महंगा बिका है वो काम नहीं करता और हर टीम फ्रेंचाइज परेशान होती है इस मुद्दे को लेके. देखना होगा कि ऋषभ पंत क्या उस चीज को चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि ऋषभ पंत किस तरीके से खेलते हैं. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो आ रहे हैं और ऐसा बोलते हैं कि जब ऋषभ पंत बैटिंग करते हैं तो दोनों टीमों की हालत खराब रहती है, क्योंकि उनको नहीं पता या तो ये मारेगा या जाएगा या छक्का जाएगा.
तो देखने वाली बात होगी। अगला इंपॉर्टेंट मुद्दा मुझे लगता है बात करनी चाहिए हमें चेन्नई की टीम के बारे में और आरसीबी के बारे में। मुझे नहीं लगता कि आरसीबी की बात ज्यादा की जानी चाहिए, क्योंकि बात उनकी की जाती है जिन्होंने कुछ किया हो। आरसीबी का ट्रैक रिकॉर्ड देख के हमेशा से मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम बेस्ट प्लेयर लाती है। हमेशा ऑक्शन में बैट्समैन उनके होते हैं, कोहली खेलते हैं उनकी तरफ से, अभी उन्होंने नया कप्तान बनाया है। तो क्या आपको लगता है कि आरसीबी खेल पाएंगे? आप जरूर अपनी राय भी बताएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार भी वो सिर्फ दिल्ली जीत पाएंगे। ट्रॉफी मुझे नहीं लगता कि उनके बस की बात है। मेरे ना बहुत सारे मुद्दे हैं, तो मैं उस बारे में जरूर बात करना चाहूंगा आप सबसे। जो लोग देखते हैं, आईपीएल को फॉलो करते हैं या पीएसएल भी आप लोग देखते हैं, तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जिस तरीके से आईपीएल होता है पिछले 1-2 साल से जो हो रहा है, स्पेशली पिछले साल से जो हो रहा है, जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है, अगर हम इसको देखें तो आईपीएल को ओवरऑल इस तरीके से बना दिया गया है कि वहां पे बैट्समैन सब कुछ उसके लिए हो रहा है, सब कुछ बैट्समैन के इर्द गिर्द हो रहा है, चाहे वो बैटिंग पिच बनाना हो या फिर इम्पैक्ट प्लेयर का रूल हो। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ इम्पैक्ट प्लेयर का रूल। तो आप अपनी टीम में प्लेयर रख सकते हैं इम्पैक्ट प्लेयर, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में हो, और वो आके कुछ ओवर्स के लिए अगर आप चाहें तो उनको बुला सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे फुटबॉल में होता है। तो अब आईपीएल ने ये काम कर तो दिया, उसके अलावा उन्होंने बैटिंग फ्रेंडली एकदम फ्लैट पिचेस बनाना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को देखने में शायद मजा आता होगा, क्योंकि अब 250 रन बनाना बड़ा आसान हो गया आईपीएल में। लेकिन अब हो क्या रहा है कि अब ऐसा लगता है कि बॉलर्स की तो टीम को जरूरत ही नहीं है, इससे अच्छा तो आप मशीन दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं एक मैं कहूंगा कि आईपीएल के साथ थोड़ा सा मेरी नाराजगी है, जो मैं जानना चाहूंगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये रूल बहुत ज्यादा खराब है, या फिर हम लोग को पिचेस कहीं ना कहीं बॉलर्स को थोड़ा बहुत फेवर करना चाहिए, क्योंकि रूल्स तो आपने अगेंस्ट कर दिए हैं, क्योंकि लोगों को छक्के चौके देखने में ही मजा आता है, और उम्मीद करता हूँ आपको भी वही मजा आता होगा, मुझे भी आता है, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन इट हर्ट्स अ लॉट। मूविंग ऑन, एक और सबसे बड़ा मुद्दा जो लोग आईपीएल कभी देखने गए हों उनके लिए ये है कि अगर आप ऑनलाइन टिकट भी बुक करते हैं, पहली बात तो वो टिकट्स मिलना बड़ा मुश्किल होता है, उसके अलावा अगर आप वो टिकट्स लेते भी हैं, आपके पास ऑनलाइन टिकट्स क्यों ना हो, आपको ऑफलाइन टिकट लेनी ही पड़ेगी। उसके लिए या तो आपको वेट करना होगा कि कब वो आपके घर पे डिलीवर होंगी, या फिर आपको स्टेडियम में जाना पड़ेगा वही टिकट खरीदने के लिए, जो कि फैंस के लिए, मेरे जैसे फैंस के लिए बड़ा दुखद है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी, मैं क्यू में बैठा रहा टिकट के लिए, अब वो मुझे मिल नहीं रही है। अब वो फाइनली मुझे मिली, लेकिन मुझे स्टेडियम एक दिन पहले जाना है क्योंकि मुझे वो टिकट लेना है। और उससे भी बड़ी बुरी बात जो है वो ये है कि हमारे पूरे बीसीसीआई की तरफ से कोई भी फैन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जिसके पास लोग जा सकें कि भाई ये कंप्लेन है, ऐसा हुआ, या फिर हमें ये इश्यूज आ रहे हैं इन द स्टेडियम, या फिर आप ऑनलाइन भी देख रहे हो। देयर इज नो इंटरैक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद बीसीसीआई और जो ऑफिशियल्स हैं, तो उसको अगर कहीं ना कहीं वो सही कर पाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन देखते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आरसीबी कहीं ना कहीं जीत जाए, कुछ थोड़ी सी उम्मीद दिखाएगी। इस साल तो वो जीतने के लिए आए हैं, हारने के मोटिव से नहीं आए, लेकिन देखना होगा कि क्या होता है। और मैं जहां तक जानता हूं, जितना मैं आईपीएल को फॉलो करता हूं, वहां पे एमएस धोनी को मिस्टर आईपीएल डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि वो अब गेम से बड़े हो चुके हैं। गेम से बड़े होना शायद मेरे लिए बड़ा वर्ड होगा बोलना, लेकिन आई वुड से कि वो लीग से बड़े हो चुके हैं, क्योंकि वो 2 बॉल खेलने के लिए आते हैं और उसमें जो टीआरपी रहती है वो स्काई रॉकेट हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं जो स्टेडियम का जो शोर होता है वो सुनने लायक होता है। और वो किसी भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के लिए आप किसी भी स्टार से पूछिए कि एक बंदे के लिए पूरा स्टेडियम पीला हो जाता है, चाहे वो कहीं पे भी खेल रहे हो, चाहे वो इंडिया में खेलें, किसी भी शहर में खेलें, या फिर वो बाहर भी चले जाएं। तो मैं चाहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी जब जाएं क्रिकेट छोड़ के, तो वो जीतते हुए जाएं। और अब तो मजाक भी चलता है कि आईपीएल मतलब थाला, और एवरीथिंग इज थाला फॉर अ रीजन। तो उम्मीद करता हूं कि अगर वो जिस दिन भी जाएं, हो सकता है उनका ये लास्ट आईपीएल हो, तो उम्मीद करूंगा कि वो जीत के जाएं। बहरहाल तब तक के लिए इतना ही आज के लिए। हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही हमारे एपिसोड को देखते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। टिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो व्हर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स, हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं।
आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900। At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. आवाज एंटरटेनमेंट और उनकी पूरी टीम जल्द ला रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए ढेर सारे नए प्रोग्राम्स। शोकास्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें सेलिब्रिटीज, सियासतदान, बिजनेस टाइकून्स और दीगर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज से बातचीत भी होगी और मुख्तलिफ मालूमात भी दी जाएगी। फॉरगॉटन, जहां पुराने क्लासिकल गानों को हमारे उभरते हुए सितारे नए अंदाज में लाइव म्यूजिक के साथ पेश करेंगे। इश्क ममनू, एक दिलकश रोमांटिक टर्किश ड्रामा। लेट्स टॉक, मज़ाहिया टॉक शो जिसमें आप रंग बिरंगे फनकारों का हुनर देखेंगे। लाइट्स कैमरा लैब, देखिए और खूब हंसिए वायरल और ट्रेंडिंग मीम्स और वीडियोस पर। बच्चों के लिए भी खास प्रोग्राम्स और पेशकश जिसमें शोज और कार्टून्स शामिल होंगे और आप देखेंगे हमारे टॉप शोज एक नई शक्ल और अंदाज में, जैसे कि दो मस्ताने, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड इवेंट्स एक सैटायर कॉमेडी की शक्ल में जहां हंसना बिल्कुल मना नहीं। तकरार लाइव, कनाडा का सबसे मकबूल सियासी शो जहां लाइव कॉल पर पाकिस्तान की सियासत पर आप अपने नजरिए पेश कर सकते हैं। और इन सब के अलावा देखिएगा दीगर दीनी प्रोग्राम्स, मूवीज, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स और भरपूर नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट ओनली ऑन आवाज एंटरटेनमेंट। आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। मार्क कार्नी वर्षों से ट्रूडो के लिबरल सलाहकार रहे हैं। कार्बन टैक्स कार्नी ने ट्रूडो को आपके भोजन पर टैक्स लगाने, घरों के खर्चे को दुगना करने और कार्बन टैक्स को 61 सेंट प्रति लीटर तक बढ़ाने में मदद की है। मार्क कार्नी बिल्कुल जस्टिन जैसा है। यदि कार्नी जीतता है तो कनाडा हार जाएगा। आओ चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार, चूड़ियां झुमके जूते पान लगाए मेहंदी ले सामान, लेडीज जेंट्स कपड़े सूट शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार, चीज मयारी सस्ते दाम, वहाँ की हर शे आए काम। आओ चले चलो चले। Eid Bazaar, presented by Avaz Entertainment and PGA International at Galaxy Grand Convention Center, Brampton, on March 28th, 29th and Chand Raat March 30th. आना मत भूलिएगा, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। Hello, Assalamu alaikum everyone. This is Ikra Khalid, your Member of Parliament in Mississauga, Erin Mills, wishing each and every one of you celebrating a very, very blessed Ramzan, Ramzan Mubarak to each and every one of you across the country. As you know, Ramzan is a month of generosity, of sacrifice and of discipline. During this month, Muslims will come together and fast from sunrise to sunset, and we practice community building, generosity, giving to those that are less fortunate than us. So this Ramzan, I hope that each and every one of us come together to build stronger community, to take care of each other, those that really need it, and also to keep in our prayers all those people across the world that are less fortunate, including in Palestine and in Sudan and Yemen and so many other countries. Ramzan Mubarak, each and every one of you. Welcome back. Welcome back to Domastani. Here we are concluding the show for tonight. बहुत उदासी हो रही है शो कंक्लूड करने में। यार हम इतना अटैच हो जाते हैं, इतना अटैच हो जाते हैं। 5 मिनट बैठ के यहाँ दिल चाहता है कि हिले ही नहीं। दिल चाहता है, दिल चाहता है। कब तक जाएगा दिल यार? वो बस चाहता रहेगा। 20 साल पुरानी हो गई, लेकिन it shouldn't be called दिल चाहता था। दिल चाहता था। You're right. It's still दिल चाहता है। Anyways, I have a very sharp, because I'm dressed like one, a businessman. Just look at that. I'm gonna do a businessman joke. No dad joke. No dad joke. Very specific, very sophisticated, very bureaucratic. The joke ये है कि what does one businessman say to another businessman in bed? You mean two Ganus? Yeah. Yeah, that's a nice way of putting it. Right. But what does one businessman say to another businessman in bed? रोजे हैं यार हमारे। Turnover. Jack. That was better than any dad joke ever told. Jack, turnover.
Now, speaking of businessmen, one of the greatest businessmen around, Mr. Donald Trump. Greatest of all. उन्होंने एक नया काम शुरू किया है. He decided to take out all the records, 27,000 apparently, of articles and memos and news pieces from the past 70, 80 years from the federal, जो भी उनकी database होती है, to remove the word gay. Gay यानी कि खुश जो होते हैं ना लोग. हाँ, जो बहुत ही खुश रहते हैं. G-A-Y, gay as in happy. Yeah. And apparently, so people, there was articles about gays which were removed for good or bad reason. We're not here to argue about that. Hua ye ke apparently there used to be, or there's still a bomber, a bomber plane. A bomber. A bomber, yeah. Bomber kehte hain bomber. A bummer. Bomber. It could be a bummer. Could be. And because we're talking about gays. It is a bummer. That was very pun intenditious. It was intended. It was bum-tended. So one of the most iconic and historic bombers in the history of the U.S., I guess, Air Force, was called Enola Gay, named after the pilot's mother, whose name was Enola Gay. That was her actual name, Enola Gay. E-N-O-L-A, which is, if spelled backwards, is alone. Wow. Gay. Mrs. Gay. Miss Gay. Miss Gay. So, Bharal, that piece of news will also have to be removed because it has gay in it. And now people are saying, then why stop there? Why not just remove that plane? Plane के बारे में अब ये कुछ बताएंगे आपको. What was that plane used for? You know, Abdullah, the irony of this whole thing is that plane that everyone is talking about was the actual bomber that dropped the Fat Man or Little Boy atomic bomb. So it was carrying the bomb that was dropped in Hiroshima and Nagasaki, that Enola Gay airplane. Now, what Trump is doing, what he's trying to do is, there's so much symbolism in this, Abdullah. So much symbolism. There's a lot of history, symbolism. Here's a plane that's gay. It's a gay plane. It's a gay plane. That gay plane killed millions of people in a flash. Sort of gives us an idea to the general public. The consensus is that gays can kill people very, very quickly and in huge amounts. So what Trump is doing... Eradicate the next generations. Right. We just saw glimpses of that back, 75 years ago, 80 years ago. But Trump is saying, we're going to wipe out that whole idea of gay. Yeah. And no one's going to be able to die anymore. So maybe, I don't know if it was his intention to actually eradicate that plane as well, which eradicated a lot of people and their next generations. Because, that's what gay does, right? It does. It does, unless you can pop a baby out of your belly button. But but reproduction is a major issue. It is a major issue. Maybe in some countries it's needed. Yeah. तो वहाँ भेज दो उन सबको. हम कहते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना जो है उनको सब गे हो जाना चाहिए. प्लेन को पाकिस्तान भेज दो. प्लेन को पाकिस्तान भेज. वहाँ पे they will sell it for parts. टेर अपार्ट कर देंगे. गे बस लिखा रह जाएगा एक plaque पे. हाँ, plaque पे गे. Gay Pakistan. But a lot of people raise the issue that this is very insensitive because we need to be sensitive about these topics, right? F you. So where was the sensitivity back in 1945? Right. On April, whatever day it was. But it was a dark. Middle of April. It was a dark day. It's a dark day. A dark day that people had to live over and over for years and decades, maybe centuries to come. They will have centuries, man. This thing doesn't just affect one generation, 2 generations, Abdullah. Yeah. It affects a lot. So here we are, two brown guys, defending Trump's actions inadvertently. Yeah, and seriously. क्योंकि न्यूज़ पे आप सुन रहे होंगे कि जो वो कर रहा है कि बहुत insensitive मामला है. तुम्हारा क्या ख्याल है यार? Talk about insensitivity. Wiping out gay for the past 75 years from all these different articles and industries. I mean, where are all the people? The people? Where are they all gonna go? Where are they gonna go?
Anyhow, we're gonna have to wrap this up before I it think gets it's crazy. any uglier Yes, it is getting ugly. or man. any more Controversial insensitive and insensitive. and not gay. Hey, I love gays. Yeah. I will always love gays. I'll always support gays. I love happy people, so stay gay, There you go. stay happy, And stay gay. and be sensitive. Stay be- sensitive. Be insensitive. Be angry. And don't be happy. And continue to reproduce. Yeah. Through the belly button. इसी बात पर अलविदा लेते हैं अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त इसी टेबल पे इसी जगह इसी some people call it जगह जगह पे। इसी जगह पे इसी मिलेंगे हम अड्डे पे। इसी अड्डे पे कहीं जाइएगा मत देखते रहिएगा next week we'll be back Will I get fired?